राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 15 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री अर्जुन चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगे। नहीं, वो हो गया, आप बैठिए, श्री अर्जुन चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में डेंगू के आए दिन नए केस आ रहे हैं। अब तक लगभग 5000 से ज्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर मामला है। इसमें स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर डेंगू को रोकथाम के उपाय नहीं लिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में नवंबर के प्रथम सप्ताह तक डेंगू के मामले में कमी आ जाया करती थी, परंतु इस वर्ष इनमें अभी तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले पंचकुला में 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दूसरे व तीसरे नंबर पर हिसार में 435 केस आ चुके हैं। करनाल में 357 केस डेंगू के आ चुके हैं। डेंगू की बीमारी को अगर ठीक से समय पर इलाज ना मिले तो घातक भी साबित हो सकती है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर रोकथाम के आश्वायक कदम न उठाए जाना। इस कारण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त है। अतः सरकार इस सदन के द्वारा अपने व्यक्तित्व देकर स्पष्ट स्थिति साबित करे, स्थिति को पूरी स्पष्ट तरह से साबित करने का काम करे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। I am grateful to the honourable members of the Haryana Legislative Assembly, Shri Arjun Chautala ji, MLA, for raising an important issue related to increasing incidence of dengue in the state of Haryana. I would like to inform my colleagues that the state government has left no stone unturned to prevent the spread of dengue in the state. Dengue is a self-limiting and an outbreak-prone viral disease transmitted by the infected female Aedes mosquitoes. Dengue virus has 4 strains, DENV 1, 2, 3 and 4. The virus causes flu-like symptoms, and in some cases it can develop into severe forms like dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, which can be life-threatening. Most of the dengue patients remain asymptomatic and lead a normal life. Some cases develop symptoms which varies from fever to bleeding and shock. Guidelines of the National Vector-Borne Disease Control Program are being implemented in the state for control of vector-borne diseases. मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2021 में हमारे कुल डेंगू केसेस थे 11,835, 22 में 8,996, 23 में 8,021 और 11 नवंबर आज 24 तक 4,634 हुई हैं। Major steps have been taken to undertaken for dengue control. सबसे पहले डेंगू एक नोटिफाइबल डिजीज एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर डाला गया है। वीवीडी रिपोर्टिंग सब अस्पताल और लैब्स में स्टेट में मैंडेटरी बन गई है। डेंगू टेस्ट प्राइवेट लैब्स में 600 रुपए में किया जाता है और सिंगल डोनर प्लेटलेट रेट्स प्राइवेट ब्लड बैंक्स में 11,000 रुपए पर यूनिट पे दिया जाता है। Dengue test is being done free of cost. 27 government labs are functional in the state, at least one per district till 11th November 24. Total 1,13,667 dengue tests have been conducted. 196 wards and 1,022 beds have been kept reserved for dengue cases in government hospitals. Platelets are provided free of cost to dengue patients of Haryana domicile admitted in government hospitals. This year, 75 SDP units have been provided
to dengue patients free of cost. Source reduction activities are being done by more than 3,000 MPHW workers. Total 3.8 crore houses visits till 11th November multiple times, and larvae found in 2,09,915 houses. 1,03,485 notices have been issued till 15th October under the Haryana municipal bylaws to owners of premises where mosquito breeding is detected. More than 6,900 localities recovered under fogging repeatedly till 15th October. Fogging done by Department of ULB and Panchayat with 5,606 hand-operated and 43 vehicle-mounted machines. जैसे ही मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला, मैं भी बताना चाहूँगी कि 8 नवंबर को मैंने एक चिट्ठी लिखी और पंचायती राज, हमारे ऑनरेबल पंचायती राज मिनिस्टर जी को और ऑनरेबल ULB मिनिस्टर को, ताकि फॉगिंग इंटेंसिफाई की जाए डेंगू के रहते. इंटरसेक्टरल मीटिंग्स एट स्टेट लेवल वाज आल्सो हेल्ड 13 मई में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ACS हेल्थ to see coordination of other departments. At district level, intersectorial meetings in all 22 districts has been conducted. Public awareness activities are being done regularly. Newspaper advertisements, pamphlets, banners and hoardings, group meetings, miking, etc. Health staff is visiting schools to make students aware about the VBD control measures. For involvement of Panchayat, total 65,000 appeals of ACS Health Haryana circulated to all sarpanches through health workers. श्री अर्जुन चौटाला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में आंकड़ों का बड़ा जिक्र करा है और बड़े स्पष्ट तरीके से कई आंकड़े तो इन्होंने बताने का काम करा है, लेकिन कई आंकड़े मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ इनमें आंकड़े गलत भी, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय जी ने जिक्र करा टोटल नंबर ऑफ केसेस का और उनके रिलेटेड जो डेथ्स हुई, तो मैं एक छोटा सा आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा. सीरियल नंबर 20 जहां सिरसा का जिक्र होता है अप टू 11th नवंबर, एक सिंगल डेथ रिपोर्टेड नहीं है, जबकि मेरे खुद के कर्मचारी की बिटिया 11 साल की उनकी बिटिया है और डेंगू में हेमरेजिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई और ये कहीं पर भी सरकारी आंकड़ों में रिपोर्टेड ही नहीं. साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने एक बात अपनी रखी इसके अंदर, मैं उसी के ऊपर एक सप्लीमेंट्री ये भी लगाना चाहूंगा कि VBDs की जो रिपोर्टिंग है सारे हॉस्पिटल्स की स्टेट को मैंडेटरी है. तो जो ये आंकड़े पेश किए गए हैं, क्यों केवल सरकारी अस्पतालों के आंकड़े पेश किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए इसके अंदर? क्योंकि आज के दिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो 14,000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर केवल 4,500 डॉक्टर्स आज के दिन स्टेट के लिए काम करते हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं. 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं. तो उनके आंकड़े जो हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट किए गए? जब सवाल किया गया था तो ये कहा गया था धुंधला जवाब नहीं, स्पष्ट जवाब के लिए एक हो गया था. एक सर इसी के अंदर 2 सप्लीमेंट्री और भी है मेरे, कि जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने ULB एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज को 8 नवंबर को लेटर लिखा गया था कि फॉगिंग को इंटेंसिफाई किया जाए. मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये सवाल रखना चाहूंगा, भाई केसेस तो नवंबर के फर्स्ट वीक से लगातार उनके अंदर हमें बढ़ोतरी दिख रही है. प्रदेश को यह भी पता है कि भाई अक्टूबर के एंड में डेंगू के केसेस बढ़ने लग जाते हैं. तो क्यों 8 नवंबर तक वेट किया गया कि भाई इस फॉगिंग को इंटेंसिफाई करा जाए? इस फॉगिंग को पहले क्यों नहीं इंटेंसिफाई कराएगा? डेंगू का मच्छर ये थोड़ी इंतजार करेगा कि जी कब लेटर आए और कब मैं किसी को काट सकता हूं, नहीं काट सकता. बीमारी तो लगातार फैलती जाएगी. अगर आप इसके अंदर देरी करेंगे तो उसका नुकसान आदमी से ज्यादा आज के दिन इस देश के बच्चों को उठाना पड़ता है. सर एक मेरा इसके अंदर सवाल और भी है सप्लीमेंट्री, ये भी एक
माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इस अवसर पर यह भी स्पष्ट करें कि रिक्त डॉक्टरों में, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस जवाब के अंदर कहीं पर भी यह जिक्र नहीं आया कि भी कमी कितनी है डॉक्टर्स की, जबकि यह हमें पता है कि हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, इक्विपमेंट की कमी थोड़ा है। सेपरेट तो हेल्थ मिनिस्टर वो भी अपना स्पष्ट करे कि इसको कब पूरा किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर। शुक्रिया अध्यक्ष साहब। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कि आंकड़ों पर, सबसे पहला प्रश्न था आंकड़ों पर कि ये सरकारी ही आंकड़े क्यों हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि ये मैंडेटरी है जी, गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट को भी। और ये अगर बताया नहीं गया कि देखो तुम्हारे हॉस्पिटल में डेंगू का पेशेंट है तो जेल भी हो सकती है, मैंडेटरी है। तो अगर उन्होंने नहीं भेजा गया तो हम देखेंगे, मगर मेरे हिसाब से आज के दिन जो हमारे पास आंकड़े हैं वो सही हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा कि फॉगिंग और स्प्रेइंग 8 नवंबर को क्यों इंटेंसिफाई हुई, हमारा काम पहले से जारी था जी, और मेरा पहला काम हेल्थ मिनिस्ट्री लेकर इंटेंसिफाई करवाना था। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये था कि ये इतने सारे वैकेंसीज हैं, हम पूरा कब करेंगे। तो आपको बहुत खुशी है बताने में कि 1 दिसंबर को पीजीआई एक एग्जाम रख रहा है 777 वैकेंसीज जो हैं भरने के लिए, और बहुत जल्द जो भी एमओज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी वैकेंसी बढ़ दी जाएगी। और साथ साथ में अगर और वैकेंसी आने वाले वक्त में मिलती हैं तो वो वैकेंसी भी, उसके लिए हमारे पास बैकलॉग साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। स्पीकर सर, बहुत जी आपका हो गया, आपका हो गया। सप्लीमेंट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए अर्जुन चौटाला ने जो आज पूछा है, ये पूरे प्रदेश के अंदर स्पीकर सर बहुत भारी मात्रा में डेंगू फैला हुआ है। तो मैं तो एक राय है कि इस प्रकार आंकड़े छुपाने की बजाय लोकल बॉडी मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर भी बैठे हैं, एक बहुत व्यवस्था की जाए फॉगिंग की, ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब हो तो गया डेंगू, परंतु इसके बचाव के लिए जरूर प्रयास सबको मिलकर करने चाहिए। मेरा समीक्षा है। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा, क्योंकि अशोक जी ने कोई बात कही है कि आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़े न कभी छुपाते हैं, न कभी छुपाए हैं, न आगे छुपाएंगे। जो व्यवस्था है उसके अंदर आपने फॉगिंग की व्यवस्था की है, हम पूरा, हमारी मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। नहीं, पूरा जवाब दिया है। देख, फॉगिंग की मशीनें लगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी कुरुक्षेत्र गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने डीसी को स्पेशल पूछा कि फॉगिंग की कितनी यहाँ हो रही है। हर हफ्ता फॉगिंग चल रही है, ये पता नहीं ध्यान में कहीं रहता है, नहीं रहता है। और आपने ठीक कहा है कि फॉगिंग और ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए भी, क्योंकि एक सप्ताह मात्र जो मच्छर होता है, और उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि घरों के अंदर कहीं ट्रे में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, मौसम का भी बदलाव हो रहा है। इस मौसम के बदलाव के कारण थोड़ा सा ज्यादा ये बीमारियां तरह तरह की पनपती हैं, परंतु उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब भी केयर बरतें इसके अंदर। कहीं ना कहीं पानी खड़ा है, कहीं हफ्ते से खड़ा है, तो परिवारों के अंदर भी हम इस बात को जरूर ध्यान में करें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर पैदा होता है तो इससे कहीं ना हमारी तरफ से पूरी तैयारी। और फॉगिंग का हमने कहा है, आगे भी जो आपने सुझाव दिया है, मैं आज ही इस सदन के बताना चाहता हूं कि फॉगिंग और तेज होगी, और हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, पंचायत में हमने सभी पंचायतों के अंदर भी सरपंचों को कहा कि फॉगिंग तेज करें, ताकि मच्छर से निजात मिले और बीमारी कम हो। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान पहली किस्त को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।